हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक रिसर्च के साथ। क्वार्टर 3 में बहुत सारे रिजल्ट आए हैं और मैंने 4 सेक्टर ऐसे चूज किए हैं जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मैं उन 4 सेक्टर में से एक रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस को एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या हो रहा है। बट दीज बिजनेसेस आर just for explanation purposes. It's not a stock recommendation, so please consult your financial advisor before taking any step, and this is here for educational purpose so that you can appreciate that what is happening in the economy. तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे 4 बिजनेसेस की जिसमें टॉप लाइन में ग्रोथ है और बॉटम लाइन में भी ग्रोथ है। तो ऐसी कुछ कंपनियां जेन टेक्नोलॉजी जो 52% से टॉप लाइन ग्रो कर रही है बट बॉटम लाइन हैज ग्रोन बाय 33%। वेल्सपुन कॉर्प में तो -24% का डी ग्रोथ हुआ है बट बॉटम लाइन हैज ग्रोन बाय 130%। फार्मा से हम बात करेंगे सेनोरस में जिसमें टॉप लाइन has grown by 30% but bottom line has grown by 131%. And lastly we'll talk about Silchar Technology जो कि 30% से टॉप लाइन में ग्रोथ हो रहा है और 33% से बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ है, which is interesting. But one thing I need to tell you upfront that ये जो ग्रोथ रेट है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रेट है. So I am not an investor who typically look at quarter on quarter growth rate because I give time to my businesses. So I look at the performance of my companies on a year-on-year growth basis. Quarter-on-quarter growth वैसे businesses में देखना चाहिए जो कि बहुत ही starting phase में है, जैसे startups में या venture capital जो invest करते हैं, angel investor जो invest करते हैं, उसमें quarter-on-quarter strike rate की बात होती है because वहाँ पे this is a race against time. Investing in startup is a race against time because अगर वो हर क्वार्टर में ग्रो नहीं करेगा देन investor money will be lost. So that's the difference between a venture capital kind of investing and a public market investing, which I do and which I try to teach through Sadhar. So यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं और एक ऐसा ही वीडियो हमने लास्ट वीक भी रिलीज किया था जिससे 5 इंटरेस्टिंग बिजनेसेस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड चेक दिस वीडियो, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Now let's get down to some businesses which are interesting. Why interesting? Because उसमें कुछ ना कुछ business update ऐसा आया है which makes it interesting. या मैंने कुछ ऐसे businesses भी पिक किए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा buzz है, जैसे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में लोग मुझसे बहुत पूछते हैं बिकॉज हम लोगों ने जेन पे बहुत पहले वीडियो बनाया था, 2 साल से हम लोग उस पर इन्वेस्टेड भी हैं। So Zen Technology is picked up because of that reason, and there are some interesting opportunities into CDMO space. So हमने वहाँ से एक stock pick किया है, but all of these 4 are not stock recommendation. These are just here for educational purpose. So इस caveat के साथ ही इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। So let's go down to the first one. सबसे पहले Zen Technology में देखेंगे तो growth जो है वो 52-53% का है टॉप लाइन में, bottom line has grown by 30%. But EBITDA margin has also grown by 42%. This is a consolidated figure. बिजनेस में क्या अपडेट है, गाइडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए बिकॉज ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। अल्तुरी जी हैं, उन्होंने बोला कि FY25 का गाइडेंस वुड बी 900 करोड़ टॉप लाइन वाइज। ऑन मार्जिन गाइडेंस ही हैड गिवन अ गाइडेंस फॉर 25% प्रॉफिट मार्जिन नेट बेसिस पे, एंड ही एक्सपेक्ट अ 50% कैगर फॉर एटलीस्ट 3 years पोस्ट ईयर 2025। ऑर्डर बुक में ही थोड़ा सा इशू था जिसके कारण स्टॉक has not done well recently. Order book जो currently stand at around 816 crore, which is less than 900 crore, which is actually the targeted revenue for this year. Or there has not been much of the growth in the order book, and that's why many people have said that the story is over. But that's subjective, and I think that's not the case for me. Out of this 816 crore, 316 crore is export, and this company has been strengthening its export order. Particularly 2 डिवीजन में काम करती है, एंट्रीडोन में और सिमुलेटर ट्रेनिंग में। तो एंट्रीडोन सिस्टम में ऑर्डर 421 करोड़ का है और रफली 400 करोड़ का ऑर्डर सिमुलेटर ट्रेनिंग में है। सो बोथ द लाइंस आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। मैंने रिसेंटली इस पे एक एनालिसिस की थी तो उसमें मैंने बताया था कि जब इस स्टॉक को देखने का मेरा नजरिया जो है वो 5 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। उसमें से पहली चीज है कि इसका ऑर्डर बुक ग्रोथ मैं देखूंगा AMC में। तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो उनका बिजनेस है जो कि एक स्टेबल कैश काउ जैसा बिजनेस है, बिकॉज अगर लोग इनसे प्रोडक्ट लेते हैं तो AMC काइंड ऑफ हैज टू बी टेकन फ्रॉम देम, एंड विच इज अ साइजेबल 10% 15% काइंड ऑफ size of the total order book. So वो order book AMC order book should grow, export order book should grow, and third is product expansion हो जो Navy और Air Force में हो, because this company so far has been focused on police and military side, which is basically the military part, non-air, non-navy portion.
So if they foray into navy and air side, then that would be a great beginning for this business. Company has raised 1000 crore rupees in QIP. So QIP का utilization कैसा है, that is important, and how they are growing their acquisition. So these are the 5 points on which I am going to judge this company in the long term or in the medium term. So let's take this quarterly view. So business update में order pipeline में थोड़ा सा delay हुआ है in receiving order, and this 800 crore के लगभग का order pipeline है. This should be materialized by Q2 of FY26. So 9 महीने के करीब का order है. उन्होंने QIP raise की थी, उससे वो कौन कौन सी कंपनी acquire कर रहे हैं. So recently they have spent 160 crore in acquisitions. उसमें से 130 crore जो invest किया है वो ARI PL नाम की एक कंपनी में किया है, 25 crore Vector Techniques में किया है, and roughly 4 crore into Bhairav Global. So there are a couple of small acquisitions as well. It marks their foray into naval simulators and drone system. खास करके ARI जो है वो marine simulation game में है, and this company is into military simulation. So marine plus military की weaponry system को अगर हम add कर देते हैं, then the company can foray into naval system. So navy के bid में वो participate कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी opportunity है. तो एक नया TAM add हो जाएगा. But this year, this company, this ARIPL has done some 100 crore or 90 crore of sales, which will remain in the same strike rate. But next year, यानी कि आज से एक साल बाद, we think that this 1+1 will become a better number than 2, and synergy will play out in FY27. Company has been very optimistic about FY27, and they are saying that FY27 तक वो synergies को activate कर लेंगे through these acquisitions. अभी रिसेंटली एरो इंडिया शो हुआ था बैंगलोर में, जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है फॉर ऑल द डिफेंस पार्टिसिपेंट हु आर एक्चुअली एक्टिव इनटू एरोस्पेस. तो वहां पे दिस कंपनी हैज शोकेस्ड व्योम कवच, व्हिच वाज लाइक आयरन डोम ऑफ इजराइल. उस टाइप का इन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली लार्ज प्रोडक्ट लॉन्च किया है. सो इफ इंडियन गवर्नमेंट टेक्स दैट, देन दैट वुड बी अनदर पाइपलाइन ऑफ ग्रोथ फॉर देम. एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट जो है वो 30% ऑफ सेल्स है, which is going to grow up to 50% of total revenue post FY27. This is very interesting because company have yesterday notified us that they have invested $10 million into US subsidiary of theirs. So USA में वो focus कर रहे हैं. So जो anti drone system और simulator का market है उसमें they are trying to be a global leader, and especially into simulator business, and साथ ही साथ वो drone पे भी उनका push है. Because they were saying in the con call that India में drone manufacturing is slightly underplayed. यहाँ पे जो बहुत सारी कंपनियां चाइनीज और ताइवानीज टेक्नोलॉजी लेकर के इंडिया में बना रही हैं, बट not very long term players are present in the market. So they are foraying into that part as well, and which actually they were already making. 3 साल पहले भी वो logistics drone बना रहे थे, as I had seen it since last 2-3 years. So I know that. So drone is not something new. That is the overall package for Zen Technology. Let's move to Welspun Corp, which is a water and oil and gas player. Top line में 4,700 से घट के 3,657 एक रिडक्शन हुआ है 24% का, बट पैट जो है वो बढ़ा है फ्रॉम अराउंड 300 to 600. So more than 130% का ग्रोथ हुआ है. Profitability, and this is largely coming from profit of shares from associate and JVs. सो कंसोल लेवल पे काफी प्रॉफिट आ रहा है. इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है. इंटरेस्टिंग इसमें ये है 18,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, विच इज गुड ऑर्डर बुक कंसिडरिंग दे आर स्ट्राइकिंग अराउंड 3,600 पर क्वार्टर, सो विच मेक्स इट अ मोर देन अ ईयर ऑर्डर बुक. एंड रिसेंटली दे हैव won a 3,000 crore order in USA for their line in pipe segment. Company has guided an EBITDA of 1,700 crores इन FY25. कंपनी ये बोलती है कि हमारे टॉप लाइन को आप मत देखो, बिकॉज ये लोग बेसिकली मेटल यानी स्टील है या फिर ग्रे स्टील है या फिर आयरन है उस पर ऑपरेट करते हैं. तो इनकी जो टॉप लाइन होती है वो आयरन और स्टील प्राइसेस पे डिपेंडेंट होती है, माइल्ड स्टील होती है, उनके प्राइसेस से लिंक्ड होती है. तो टॉप लाइन कैन गो एनी डायरेक्शन बिकॉज it is a function of steel prices, but they are saying that watch our EBITDA, and that's why they've given a guidance on EBITDA. They have said that the company is taking the right measure to control the EBITDA margin. So margin guidance is largely has to be seen in light of the EBITDA. अपडेट में देखेंगे तो प्लास्टिक पाइप का जो इनका बिजनेस है उसमें कैपेक्स कर रहे हैं 2,355 करोड़ का ग्रेजुअली, एंड दे आर प्लानिंग लॉन्च ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सिंटेक्स, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था इनटू प्लास्टिक वाटर सिस्टम प्लम्बिंग साइड में। तो वो Q1 FY26 में आएगा। द कंपनी हैज वेंचर्ड इनटू OPVC पाइप्स इनटू थ्रू देम इनटू दिस सेगमेंट। सो OPVC में भी वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने बजट प्रेजेंटेशन में बात की थी कि वाटर सेगमेंट में जल जीवन मिशन को नई फ्रेश लीज मिली है, काफी एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। बट इट इज नॉट जस्ट अ प्लास्टिक पाइप स्टोरी, इट्स एक्चुअली ऑयल एंड गैस स्टोरी, बिकॉज सऊदी अरेबिया में दे हैव spent around 1700 crore for their LSAW as well as DI pipes. So hardcore pipe manufacturing company है and they are very bullish into Saudi market because उनका market में जो order भी बहुत ज़्यादा order Saudi side से आ रहा है। Then third lever is USA, significant USA presence है इनका, over 50% of their revenue is currently from USA and new order जो है वो further solidify होने वाले हैं because they have a plant in USA which has a order booked for next 1.5 years। और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस में यूएस इन्वेस्ट करेगी अंडर ट्रम्प लीडरशिप, तो इनको बहुत सारे ऑर्डर वहां से मिलने के चांसेस है। बट अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, यू हैव टू डू द थॉरो ड्यू डिलिजेंस व्हाई वेल्सपन कॉर्प शुड डू वेल एंड यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग पोजीशन इनटू दिस कंपनी। बट वी हैव डीप डाइव इनटू दिस बिजनेस for our members 2 months back, and if you want to get a detailed analysis on Welspun Corp, then you can join Sadhan channel membership. There we have discussed this stock in detailed fashion, so then you can create a better understanding of this business. The outlook looks great. The company is trying to make strides into plastic pipes and they are targeting 3 to 5% of market share, because market में बहुत बड़े बड़े player हैं, जैसे आशीर्वाद पाइप्स हैं, सुप्रीम है वहाँ पे, प्रिंस पाइप हैं, and many big companies are there. So वहाँ पे मार्केट शेयर अर्न करना इज टफ। इवन वी हैव सीन इन केस ऑफ स्किपर, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि दे आर काइंड ऑफ रिड्यूसिंग देयर फोकस फ्रॉम जो पीवीसी पाइप का बिजनेस है। जल जीवन मिशन के थ्रू ये ऑपरेट कर रहे हैं, दैट विल रीइग्नाइट द डीआई पाइप वर्टिकल। द मैनेजमेंट फोकस सेक्युलर ग्रोथ इन इट्स लाइन पाइप सेगमेंट। लाइन पाइप इज बेसिकली देयर LSAW and SSAW pipes which are going to USA and Saudi. And also this company is working on water as well as oil and gas. So all important liquids are passing through Welspun Corp. So it's a stock one should watch out for. Third business is Cenovus Pharmaceutical. दोस्तों आजकल CDMO का बज़ काफ़ी बना हुआ है। तो CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो CDMO जो कि कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं फॉर देयर क्लाइंट्स विच आर लार्जली इनटू रेगुलेटेड मार्केट। सो इसमें एक टिपिकल एग्जांपल आता है सिंजीन का, जिसपे हमने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो की हुई है। यू कैन गो एंड वॉच आउट टू अंडरस्टैंड द CDMO इन एंड आउट। सिंजीन के बाद हम लोगों ने Cenovus Pharmaceutical के बारे में अभी आपके साथ पहली बार बात कर रहे हैं। तो इसमें टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 9 मंथली बेसिस पे भी देखिए तो पैट 162% से ग्रो हो रहा है। तो दिस कंपनी इज इन अ बलूनिंग फेज, इट लुक्स लाइक नंबर वाइज। सो पैट में आप 9 मंथली बेसिस पे देखें या क्वार्टरली बेसिस पे देखें, इज मोर देन 1.5 times ऑफ ग्रोथ। सो Q3 टॉप लाइन जो है वो 78 से बढ़ के 106 हुई है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी हैज grown from 7 crore to 17 crores in just a year. So what is interesting happening, we need to understand, and guidance attractive है। They are saying that that top line of 410 to 430 crore का guidance उन्होंने FY25 का दिया है, and they expect a 50% growth in next year. That is the interesting piece of the puzzle, that next year का भी guidance काफी strong है। PAT expected in FY25 is roughly 55 to 60 crores, and the company plans to double the प्रॉफिटेबिलिटी, यानी 50% टॉप लाइन एंड 100% बॉटम लाइन ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है। सो काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, बट वन हैज टू डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस टू बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू सच बिजनेसेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट कैन बिकम बुलिश। हमें अपना हार्ड अर्न मनी को सिर्फ मैनेजमेंट के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स ट्राई टू डिग डीपर कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इनका बिजनेस जो है वो 90% रेगुलेटेड मार्केट में पीआई का बिजनेस है, और यूएसए में भी इनका प्लांट है अटलांटा में, और एक प्लांट इनका अहमदाबाद में है। इंडिया में जो प्लांट है वो 65 to 70% यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है, और यूएसए का प्लांट है वो 50% यूटिलाइजेशन पे अभी ऑपरेट कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ यूएस प्लांट, अटलांटा प्लांट, बाई 60 to 65%। सो वहां से वो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा एज पर देम। की बिजनेस अपडेट में देखते हैं तो CDMO अराउंड 11 to 12% ऑफ दियर टोटल रेवेन्यू है, जो 2-3 साल पहले 5-6% था। तो CDMO में काफी ईयर ऑन ईयर
ग्रोथ हो रहा है, 60% का ग्रोथ अभी हुआ है CDMO बिजनेस में। इनके पास CDMO बिजनेस में 21 प्रोडक्ट हैं, देन दे आर प्लानिंग टू कॉमर्शियलाइज 17 मोर इन अपकमिंग क्वार्टर्स एंड दे हैव 60 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन इन दिस सेगमेंट। सो CDMO में काफी तेजी से ये ग्रो करना चाहते हैं, but one has to be careful in understanding that this business is just 11 to 12% of their top line, and the company is trying to backward integrate into the other part of the business। जो ग्रीनफील्ड API मैन्युफैक्चरिंग वो सेटअप कर रही हैं, जहां पे वो कैपेसिटी को अराउंड 5-6x कर रही हैं, 25 MTPA to 169 MTPA टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। प्रोडक्ट साइड में उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो API प्रोडक्ट हैं, उसमें 51 प्रोडक्ट्स आर इन पाइपलाइन, आउट ऑफ विच 28 हैव अ CGT अपॉर्चुनिटी। सो CGT अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली इंटरेस्टिंग बिकॉज ऐसे मॉलिक्यूल्स में FDI अलाउ करती है, US FDA, यहाँ पे जेनरिक अभी बन नहीं रहे हैं, तो वहां पे ऑफ पेटेंट होने के बाद 6 महीने की एक्सक्लूसिविटी रहती है टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड API मेकर्स। सो 6 महीने तक एक अच्छा मार्जिन मिलता है, ठीक ठाक मार्जिन मिलता है, बट उसके आगे फिर कंपटीशन आ जाने के कारण वो घट जाता है। तो उनके पास 28 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि CGT अपॉर्चुनिटी है। आउट ऑफ 51 प्रोडक्ट पाइपलाइंस में जो है, उसमें से 5 जो है कमर्शियलाइज होने वाले हैं इन कमिंग क्वार्टर, इन दिस क्वार्टर इटसेल्फ। So product pipeline wise, this company is looking good, but the company is also focusing into emerging market. They are saying that the margins in emerging market has been depressed, but they are trying to do the product mix change and geography mix change from Africa to South America and East Asia. कुछ इंडिया में भी एक ग्रीनफील्ड साइट में एंट्री करना चाहते हैं ताकि वो मिड टियर emerging market को कैटर कर सके। So this business has to be studied carefully before taking any positions, because this is not a simple business. One has to appreciate the CDMO part, the API part, their product pipeline, and the CGT makes it interesting, but one has to be really carefully going through all the molecules and their opportunity size before taking positions into such businesses. Lastly, let's talk about Silchar Technology, which has done well in terms of PAT. Q3 FY24 में 26 करोड़ का पैट था, वो बढ़कर 35 करोड़ का हो गया है। सो द मार्जिन हैज पीक्ड इनटू लास्ट क्वार्टर इन Q2, बट Q3 में ये वापस थोड़ा सा कम हुआ है, तो उस पर हम बात करेंगे क्यों ये कम हुआ है। बट सिक्वेंसली एंड ईयरली बेसिस पे भी टॉप लाइन हैज बीन ग्रोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 मंथ्स में 390 करोड़ के करीब हो गया, जो पिछले 9 मंथ्स में 290 करोड़ था पिछले साल। EBITDA margin has also grown from 28 to 29%. Top line guidance of 550 crore का दिया है in FY25. The current order pipeline is 550 crore. So 1x का इनका order book to sales ratio है। और ये कंपनी की जो कैपेसिटी है वो लाइव हो गई थी अगस्त 24 में, जहाँ पे उन्होंने 4000 MVA से 7500 MVA कर लिया था। यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बेहतर होगा तो मार्जिन में भी ग्रोथ आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होने के कारण। बट जो इनका एक मार्जिन में कंप्रेशन का एक रीजन जो था वो हो सकता था, नॉट कंप्रेशन एग्जैक्टली, बट मार्जिन थोड़ी सी कम हुई थी बिकॉज ऑफ CRGO। सो रॉ मटेरियल है CRGO, जो कि इशू था पिछले क्वार्टर में, बट इस क्वार्टर में मैनेजमेंट इज सेइंग दैट the concern regarding the industry's primary raw material, which is CRGO, has subsided following the renewal of the BIS licenses of several players. तो बेसिकली क्या था कि CRGO मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में बहुत हैं, बट चाइना से भी आता था, तो इंडिया ने बोला कि आपको जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको BIS लाइसेंस लेना होगा। तो उस चक्कर में जो 3-4 महीने में जिनके पास BIS नहीं था वो CRGO नहीं सप्लाई कर पा रहे थे, तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ प्रेशर इन द कॉस्ट साइड, but now that has been reduced. So going forward we can expect a decent margin. Expansion का इनका प्लान जो है वो तो 7500 MVA पे है, बट लैंड बैंक उनके पास काफ़ी है जो बहुत आगे तक एक्सपेंड कर सकते हैं। बट आई थिंक इतना एक्सपेंशन कभी होगा नहीं, बिकॉज उतना एक्सपेंशन हो जाने पे उनको सोलर के अलावा दूसरे प्रोडक्ट में भी जाना पड़ेगा। फिलहाल वो सोलर पे फोकस्ड हैं, जहाँ पे वो इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाते हैं जो सोलर को कैटर करता है। 30,000 MVA वुड बी ह्यूज अमाउंट, इवन बियॉन्ड 2030 है शायद हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो सके। फिलहाल मुझे कंट्री में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं दिख रही है, बट दे हैव लैंड बैंक रेडी फॉर दैट। So I like this business because the company is quite confidently exporting. They are now quite confident of maintaining export share revenue despite high domestic demand. So demand domestically भी बढ़ी है और US में भी बढ़ी है, और वो US में भी एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं। Exports were around 45% of their sales in HY FY25, and it will command a higher margin going forward, and currently भी ज़्यादा मार्जिन पे है। तो एक्सपोर्ट पे ये कंपनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बोले कि डोमेस्टिक के अलावा भी हम एक्सपोर्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
आउटलुक की बात करें तो गवर्नमेंट का इन एलोकेशन जो है वो FY 2030 तक 9.15 लाख करोड़ होने वाला है on high voltage transmission side. So the sector has huge tailwind and this sector is placed to do well, and the company can reach 750 crore of top line with the current capacity. That's what they have guided कि अभी existing capacity जो है 550 तक जा रहे हैं, but 750 तक इसी capacity से वो operate कर पाएंगे. So फिलहाल capex is not there on their cards. So that's good. I like businesses जहाँ पे ज़्यादा capex, frequent capex करने की जरूरत ना पड़े, और इनको करना भी होगा तो brown field करेंगे जहाँ पे cost कम होते हैं. And they have been very agile in terms of doing capacity expansion. So that's all on Silcha Technology. This is the last episode in terms of covering the quarterly results. So अगर आपको लग रहा है कि कोई stocks बहुत ही अच्छा था जिसे हमने miss out किया है through these 2-3 videos, so you can comment that name in the comment, and so that we can have a look at it, जिसमें growth at least 50% का आया हो top line में and bottom line में. तो if you are writing a name, please make sure that there should be a growth of more than 50% in either top line or in the bottom line. You can mention why you find it interesting so that we can have a detailed analysis on channel. That's all from me. Don't forget to subscribe our channel, and if you are a subscriber and you are not getting notification from YouTube, then you might not have turned on the bell notification. So do turn on the bell notification so that our efforts can reach you, and don't forget to share this with your friend. और रिसेंटली हम लोगों ने ज्योतिष स्ट्रक्चर पे भी वीडियो बनाया है. सो अगर आपके किसी मित्र के पास ज्योतिष स्ट्रक्चर है तो उसके साथ वीडियो शेयर करें, उन्हें शायद गाइडेंस मिल पाएगी कि आरी के साथ क्या करना है. So go and check out that video also. Thanks for watching. Content of this video is for educational and informational purposes only and should not be considered financial, investment, or trading advice. The information presented is not a recommendation or endorsement of any particular investment strategy, security, or financial decision. Investing involves risks, and viewers should conduct their own research. The creator of this video is not responsible for any financial losses incurred based on the information provided.